میں بھی ہے. اب اللہ ظاہر میں ہے تو اس بات کو سمجھیں کہ اللہ ظاہر میں ہے تو وہ کس صورت میں، کس روپ میں، کس طرح سے وہ ظاہر میں ہے. اور اگر باطن میں وہ فرما رہا ہے تو وہ باطن میں کون سی صورت، کون سا روپ، کون سا طریقے سے وہ باطن میں ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہوا ظاہر ہوا الباطن کا مطلب ہے کہ اللہ ظاہر میں بھی ہے، اللہ باطن میں بھی ہے. مطلب کہ ظاہر میں اللہ ہے تو وہ تمہارے کرموں کے مطابق ہے. اچھے کرم کرتے جاؤ. تمہارے بیوی، تمہارے بچے، تمہارے فیملی، تمہارے کاروبار، یہ سب تمہارے کرموں میں آ جاتے ہیں. تمہارے کرم ہے جو نبھانا ہے ایمانداری سے. اس سے منہ نہ چراؤ. اس سے پیٹ دکھا کر جنگل جانے کے لیے اللہ نہیں کہہ رہا ہے کہ جنگل چلے جاؤ. تم اپنا کرم نبھاؤ، پھل کی چنتا مت کرو، بس اپنا کرم کرو. ہوا ظاہر کا مطلب ہے کہ اللہ تمہارے کرموں کے روپ میں ہے. تم اچھے کرم کرتے رہو. اور دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ صرف کرم تمہارے بیوی بچے تمہارے پریوار تک ہی محدود نہیں ہے. تمہارے کرموں میں آ جاتے ہیں. ہوا ظاہر کا مطلب کہ تمہارے ظاہری کرم میں آ جاتے ہیں تو بیوی بچوں کے علاوہ، فیملی پریوار کے علاوہ، بزنس کے علاوہ اللہ کے دیگر مخلوق بھی آ جاتے ہیں. دیگر مخلوقوں کے اوپر بھی رحم کرو، کرم کرو. ایک چیٹی کو بھی دانے پروسو، ایک پنچھی کو بھی اپنے حصے سے نکال کر آگے رکھو. یہ کرم آ جاتے ہیں. راہ چلتے اگر ایک کنکر پتھر، ایک اینٹ بھی دکھ جائے کہ جس سے محسوس ہو کہ کسی کو تکلیف ہوگا، اس کنکر پتھر کو راستے سے ہٹاؤ. یہ تمہارے کرموں میں آ جاتے ہیں. اگر کہیں پہ دیگر پانی زیادہ بہ رہا ہے تو اس پانی کو روکنے کی کوشش کرو تاکہ دوسرے مخلوقوں تک وہ پانی پہنچ سکے اور کوئی پیاس اپنی بجھا سکے. یہ تمہارے کرموں میں آتا ہے. دان، صدقے، زکات، یہ سب کرتے رہو. یہ تمہارے کرموں میں آتا ہے. غریبوں کو کھلاؤ، پیاسے کو پلاؤ، یہ کرموں میں آتا ہے. اللہ وبرکاتہ. دیکھیے جناب، جہاں تک غلطی کا سوال ہے تو غلطی تو انسان کرتا ہی ہے، اس سے ہو ہی جاتی ہے، کیونکہ انسان غلطیوں کا پتلا بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے. اب کون سی غلطی مجھ سے ہو گئی، کون سی دو ناؤں کی سواری کری تو کون سی ایک ناؤ کی، اگر کھل کے آپ سمجھائیں تو شاید میں سمجھ سکوں. ورنہ یہ تو وہی والی باتیں ہو گئیں جو جادوگر وغیرہ کرتے ہیں، جو وہ کرتے نا ڈھونگی بابا لوگ، کہ بہت بڑا بھلانا دھماکہ. یہ بات اپنے کو سمجھ میں آتی نہیں. صاف صاف اب کھل کے بتائیں، کھل کے بتائیں آپ صاف صاف، تو میں ہو سکتا ہے سدھار کروں. اور ایمان پہ ڈاکے ڈالنے والی بات ہے تو ہو سکتا ہے کوئی شے آپ جو بتا رہے ہیں کوئی ایسی چیز لگی ہو گندی، اس کا ہمیں تو علم ہے نہیں، کیونکہ کوئی باطنی آنکھ ہمارے پاس تھوڑی ہے جو ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. وہ تو آپ جیسے لوگ اللہ والی دیکھ سکتے ہیں اس کو. تو ہمیں راستہ بتاؤ، کیونکہ ہم ڈاکٹر کے پاس پہنچے ہیں تو دوا تو چاہیے نا. اب ڈاکٹر کا کام ہے کیا دوا دینا ہے ہمیں، وہ دوا ہمیں بتاؤ تو ہم اس کا استعمال کر کے شاید پار لگ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلی بات تو میں کہنا چاہوں گا کہ ہمیں کوئی بابا نہ سمجھے. اور رہی بات ڈھونگی والی بابا کی، تو میں ڈھونگی والی بات کرتا نہیں ہوں. میری زبان سے نکلی ہوئی ہر ایک بانی خدا کو گواہ بنا کر میں کہتا ہوں، اپنے مرشد پاک کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، وہ حق بات نکلتی ہے، حق بات نکلتی ہے. میں کوئی ڈھونگی والی بات نہیں کر رہا ہوں اور کوئی نہ باباؤں کا نقل کر رہا ہوں. سمجھیں، میری زبان سے جو نکل رہی ہے جو بانی، میں اللہ رب العزت کو گواہ بنا کر، اپنے مرشد پاک کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں کہ جو بانی میری زبان سے نکلی ہے وہ برحق حق نکلی ہے آپ کے لیے. اور رہی بات آپ اسے ڈھونگی سمجھیں، آپ کے کمزوری ہیں، آپ اسے جو بھی نام دینا چاہیں دے سکتے ہیں. اور آپ یہ بات فرما رہے ہیں کہ میں تو ڈاکٹر کے پاس پہنچا ہوں دوائی لینے کے لیے، تو ڈاکٹر کا کام ہے دوائی دینا، تو آپ کو بھول گئے ہیں اپنی دوائی، اپنے مرض کی دوائی آپ بھول بیٹھے ہیں. یہی تو سب سے بڑی غلطی ہے.
सारी खताएं, सारी गलतियां आपकी ही निकलने वाली है। आपको दवाई आज नहीं, आपको दवाई बरसों पहले ही मिल चुकी है, पर आपने उस दवाई का इस्तेमाल, उस दवाई की कदर ना की है। क्या आपने जिक्र कल्ब नहीं ले रखा है? सबसे बड़ी नेमत, सबसे बड़ी दवाई तो आपको जिक्र कल्ब की दौलत, वो दवा आपको अता की गई है। लेकिन आपने उसका कदर ना किया है, आपने उसको नहीं समझा है। ये सबसे बड़ी गलती है। डॉक्टर के पास बंदा जाता है, बेशक दवाई के लिए जाता है, ताकि उसकी परेशानी, उसके मसले हल हों, परेशानी दूर हों। इसी तरह से अल्लाह का तालिब, अल्लाह का तलाशने वाला, अल्लाह को पाने की चाहत रखने वाला, वो बंदा अल्लाह वाले के पास जाता है। अल्लाह वाले जो हैं वो क्या देते हैं, क्या अता करते हैं? सबसे पहले दिल की दौलत अता करते हैं। दिल की बीमारी दूर हो, वो दवा अता करते हैं। और वो दवा आपको बहुत पहले मिल चुकी है, पर आपने उसका सही इस्तेमाल नहीं किया, आपने उसका सही कदर नहीं किया। ये आपकी खता है, आपकी गलती है। दवाई आपको मिल चुकी है, पर आप नहीं समझ पाए, वो आपकी ही मजबूरी है ना, आपकी ही गलती है ना। खैर, ढोंगी बाबा जो होता है वो तो लोगों को इस तरह के बातें बनाकर और समझाकर उससे पैसे भी ऐंठता है, उससे चंदे नजराने भी खींचता है। लेकिन यहाँ पर ही ऐसी कोई बात नहीं है, नहीं आपसे किसी तरह के कोई डिमांड की जाएगी और ना कोई चंदा नजराने का बात किया जाएगा। यहाँ जो हक बात है वही बताया जाएगा, जो सही है वही कहा जाएगा। आपने कहा कि सैयदी यूनुस अल गौहर शाही से भी बात हुई है, आपने कहा कि नदीम जी से भी बात हुई है। मैंने आपकी सारी बातें सुनी है। आपसे कहना यह है कि ऐसी हस्ती से आपकी बात हुई है, ऐसी हस्तियों से आपने बातें की है। आप खुशनसीब हैं कि ऐसी हस्तियों तक आपने अपने बात रखें, आपकी बात ऐसी हस्तियों से हुई, आप खुशनसीब हैं। पर आपने ऐसी हस्तियों तक पहुंच के भी जो आपको पाना था वो आप नहीं पा सके, जो आपको हासिल करना था वो हासिल नहीं कर सके। ये है आपकी कमजोरी, ये है आपकी गलतियां। और जो कुछ हासिल किया आपने, उस हासिल को किए हुए नेमतों को संभाल नहीं पाए, ये है आपकी कमजोरी। मेरी बातों का हो सकता है कि आपको दिल पर असर करे, आपको मेरी बातें अच्छी ना लगे, पर जो हक है वो मैं बोल रहा हूं। आपके ही जुबान से सुनी गई बातों के आधार पर मैं बोल रहा हूं। और रही बात ईमान पर डाका डालने वाली बात, आपका ईमान तबाह और बर्बाद करने वाली बात जो मैंने बोला, जो मखलूक, जो गंदी चीज आपके पीछे लगी हुई है, जो आपके ईमान पर डाका डाल रही है, डालने की कोशिश कर रही है, 50% तो डाल चुकी है, बाकी 50% डालना बाकी है। आपको अपना अधीन बनाना चाहती है, जो मैंने बोला। और ये बात भी बोला कि
आप दो नाव की सवारी कर रहे हैं। एक बात याद रखें, दो नाव की सवारी करने वाला कभी सफल नहीं होता है, कभी कामयाब नहीं होता है। और जो गंदी शय के बारे में बोला कि जो लगी है, जो आपको तबाह बर्बाद करना चाहती है, आपके ईमान पे डांका डाल रही है, वो आपको तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक आपको तोड़ ना दे। वो आपको अब तक तोड़ रही है और तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक आपको तोड़ ना दे, आपका ईमान पूरी तरह से तबाह बर्बाद ना कर दे, तब तक नहीं छोड़ेगी। ये बात भी मैंने सरकार को, अपने मुर्शिद को गवाह बनाकर आपकी बातों को सुनने के बाद बोला है और हक बोला है। एक बात याद रखें कि इस दुनिया में दो ताकतें, दो शक्तियां हैं। एक ताकत तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की ताकत है और दूसरी ताकत शैतान लईन इबलीस की ताकत है, उसके जिन्नाती लश्करों की, उसकी जिन्नाती फौज की ताकत है। समझ लें। पहली बात, आप जब अल्लाह वाले का रास्ता भी चाहते हैं, अल्लाह को भी पाना चाहते हैं, अल्लाह के भी तालिब हैं, बुजुर्गाने दीन के भी तालिब हैं, और दूसरी बात कि आप कहते हैं कि मुझे दुनिया भी चाहिए, मुझे परिवार भी चाहिए, मुझे दौलत भी चाहिए। ये हो गई दो नाव की सवारी। एक म्यान में कभी दो तलवार रह ही नहीं सकते, टिक ही नहीं सकते। आपको इन दो में से किसी एक का ही तालिब बनना है, किसी एक का ही चुनाव करना है। ये दो नाव की सवारी आपने करके अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारा है। ये दो तरह के फैसला लेकर आपने खुद ही अपने लिए अपनी आफत और बलाएं को दावत दी है। अब मैं हकीकत खोल रहा हूं, आपको बता रहा हूं, गौर से सुने और समझें, अमल करें। इस बात को समझें तो आपके लिए भलाई है, वरना अगर इसे यूं ही अपने एक कान से सुनकर दूसरे कान से उड़ा दें तो ये आपकी ही गलती होगी। अल्लाह वाले जो वली अल्लाह होते हैं, अल्लाह के जो दोस्त होते हैं, उनमें कुछ अल्लाह के वली मज्जूब होते हैं, कुछ अल्लाह के वली महबूब होते हैं। महबूब अल्लाह वाले जो होते हैं, वो अपने कलाम के जरिए, अपने वाणी के जरिए, अपने शेर व शायरी के जरिए लोगों को नसीहत करते हैं, उसकी इस्लाह करने के लिए, उसे सही दिशा सही राह पे लाने के लिए। उनकी किताबें, उनकी तसनीफें देखने को मिलती है ताकि बंदा गुमराही से निकले और हक का रास्ता चुने। लेकिन जो मज्जूब वली अल्लाह होते हैं, उनके दरबार में आप जैसे लोग और दीगर मुसलमान जाते हैं ऐसे चाहत लेकर, एक तो अल्लाह की तलब, दूसरी दुनिया की भी तलब। तो वो क्यों डंडे बरसाते हैं, वो क्यों गाली से नवाजते हैं, वो क्यों धुतकार कर भगाते हैं? वो इसलिए डंडे बरसाते हैं, गाली से नवाजते हैं, धुतकार कर भगाते हैं
क्योंकि वो हकीकत जानते हैं, वो पर्दे के उस पार का राज जानते हैं, बंदे के अंदर की जाहिर और बातिन को जानते हैं। इस वजह से वो गालियों से नवाजते हैं, डंडे से नवाजते हैं, धुतकार कर भगाते हैं। अब अल्लाह वालों के दामन में, उनके चरणों में जाने से जो चाहत ज़्यादा हमारा प्रबल होता है, जो चीज़ की चाहत ज़्यादा हावी होती है, जाहिर सी बात है वो पूरी हो जाती है। तो बंदा समझता है, खुश हो जाता है कि हमारी चाहत हमें मिल गई। उसे दुनिया की तलब होती है, दुनिया मिल जाती है। पर अल्लाह और बुजुर्गाने दीन, अल्लाह की मोहब्बत से वो महरूम हो रह जाता है। फिर बाद में चाहत उसके अंदर दिल में तलब ये हुई होती है कि काश हमें अल्लाह भी मिलता। लेकिन अल्लाह का कानून ये है कि आप एक के तालिब बने, या तो अल्लाह को चुने या तो दुनिया को चुने। कुरानों में अल्लाह ने, कुरान की मजीद में, अपने कलामों में अल्लाह ने फरमाया, उससे पता चलता है, इशारा मिलता है कि अल्लाह चाहता है कि बंदा पूरी तौर से, लेकिन अल्लाह का कानून ये है कि आप एक के तालिब बने, या तो अल्लाह को चुने या तो दुनिया को चुने। कुरानों में अल्लाह ने, कुरान की मजीद में, अपने कलामों में अल्लाह ने फरमाया, उससे पता चलता है, इशारा मिलता है कि अल्लाह चाहता है कि बंदा पूरी तौर से सब कुछ भुलाकर, दुनिया को भुलाकर अल्लाह का तालिब बने, अल्लाह वाला बने। लेकिन बंदे की चाहत दो होती है, एक तो दुनिया, बीवी बच्चे परिवार, दूसरा अल्लाह की चाहत। लेकिन सबसे जो ज़्यादा हावी जो चाहत होती है, जो उसके ऊपर सवार होती है, वो दुनिया की ही रहती है। और आपका खता ये है, कसूर ये है कि आपके ऊपर सबसे पहला जो चाहत है वो दुनिया की चाहत है, दुनिया की तलब है। और कुछ परसेंट अल्लाह की भी चाहत है, अल्लाह वालों की भी चाहत है कि अल्लाह भी मिले, बुजुर्गों का दीदार हो, बुजुर्गों का जो रास्ते हैं और उनके जो तौर तरीके हैं वो भी नसीब हो। लेकिन हावी जो है आपके ऊपर, वो ज़्यादा दुनिया की चाहत हावी है। समझिए इस बात को। और अल्लाह की चाहत, अल्लाह वालों की चाहत वो कम है। इस वजह से जो अल्लाह के मखलूक हैं छोड़े हुए, जो शैतान लईन है, उसके जो लश्कर हैं, जो जिन्नाती फौज हैं, वो आप पर टूट कर हमला कर रही है, ताकि जो चाहत है अल्लाह की थोड़ी भी बची हुई, वो भी दिलों से आपके निकाल दे, आपको तबाह बर्बाद कर दे, पूरी तरह से हमारा अधीन हो जाए। दुनिया की चाहत, दुनिया की तलब अपने दिलों में बसा ले बंदा, पूरी तरह से इब्लीस के नक्शो कदम पर आ जाए। इस वजह से वो आपको दुनियावी चोट पहुंचा रहा है, वो आपको बातनी चोट पहुंचा रहा है, ताकि ईमान जो है वो चला जाए इसका। इसलिए मैंने बोला कि वो तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक कि वो तोड़ ना दे बढ़िया से।
अच्छी तरीक़ा से वो तोड़ ना दे। लेकिन शुक्र है आपकी भी हिम्मत है कि आप लड़ रहे हैं, टूटे नहीं हैं। वक्त है संभलने का, समझने का। वो समझिए, एक को चुनिए, एक को चुनिए और उसी पर निर्भर हो जाइए। अगर सैयदी यूनुस अल गौहर शाही से बात की है, नदीम जी से बात की है आपने, सरकार गौहर शाही का दामन थामा है, तो अपना तवक्कल, अपना ईमान उसी पर कायम कर लीजिए कि चाहे जिस हाल में हम हैं, अल्लाह का शुक्र है, हमारे सरकार का करम है, हम इसी में खुश हैं। और तालीम और तनकीद जो मिल रही है उस पर सही तरह से अमल कीजिए। देखें, आपका जाहिर भी संवर जाएगा, आपकी बातिन भी संवर जाएगी। एक पर अगर आप आ जाएंगे तो, एक नाव की सवारी अगर आप कर लेंगे तो आपको दिल का सुकून भी हासिल हो जाएगा और दुनिया में जो घट रहा है, बढ़ रहा है, उसका गम भी आपको नहीं बाकी रहेगा। ये मेरा और मेरे सरकार का वादा है। इसलिए मैंने बोला कि अब आप आए हैं, संपर्क किए हैं, तो सही जगह संपर्क किए हैं। इसलिए बोला, अपने सरकार को अपना ताकत बनाकर मैंने बोला, अपने मुर्शिद पाक को अपना ताकत बनाकर बोला, अपने रब को गवाह बनाकर मैंने ये बोला कि आप सही जगह संपर्क किए हैं। तो ये बताइए जनाब कि मैं अपनी बीवी बच्चों को क्या रास्ते में छोड़ दूं, सड़क पे? उनको रास्ते में छोड़ के सड़क पे और निकल जाऊंगा जंगलों में अल्लाह की इबादत करने, तो ये भी तो गुनाह होगा ना। दुनिया पाने का मतलब मेरी कोई बहुत बड़ी धन दौलत, महल खड़े करना नहीं है। बस मैं ये चाहता हूँ कि मेरा कारोबार ठीक हो जाए और एक छोटा सा घर बना सकूं जो कि सिर छुपाने की जगह हो। अभी तो दर दर भटक रहे हैं और यहाँ मैं इस वक्त बम्बई में हूँ। इस कदर बिजी ज़िंदगी है कि 10 मिनट का भी टाइम नहीं मिलता, और एक दिन की अगर छुट्टी कर लो तो 5 दिन का नुकसान होता है उसके अंदर। अब मैं इतना बिजी हूँ कि जिसका जवाब नहीं। इबादत के लिए बिल्कुल वक्त नहीं मिलता, क्या करूँ ये बताओ। बातें तो आपकी अच्छी लगी, आप अच्छे इंसान हैं। अल्लाह ताला और तौफीक दे आपको लोगों को समझाने की, उनके दिलों को बदलने की। आप एक महत्वपूर्ण बुज़ुर्ग हैं, ये मैं जानता हूँ, लेकिन आप मेरा पूरी तरीके से मार्गदर्शन करें, सही रास्ता बताएं मुझे, सही चुनाव करने का तरीक़ा बताएं जिस पर मैं चल सकूं। बातें तो आपकी अच्छी लगी, आप अच्छे इंसान हैं। अल्लाह ताला और तौफीक दे आपको लोगों को समझाने की, उनके दिलों को बदलने की। आप एक महत्वपूर्ण बुज़ुर्ग हैं, ये मैं जानता हूँ, लेकिन आप मेरा पूरी तरीके से मार्गदर्शन करें, सही रास्ता बताएं मुझे, सही चुनाव करने का तरीक़ा बताएं जिस पर मैं चल सकूं। ये मैं जानता हूँ, लेकिन आप मेरा पूरी तरीके से मार्गदर्शन करें, सही रास्ता बताएं मुझे, सही चुनाव करने का तरीक़ा बताएं जिस पर मैं चल सकूं। मुझे पता था कि आप कुछ ऐसा ही अल्फाज अपनी जुबान से बोलेंगे कि क्या बीवी बच्चों को छोड़ दूं और जंगल इख्तियार कर लूं। बीवी बच्चा भी तो ज़रूरी है, मुझे पता था। और दुनियादार हर इंसान जिसके आगे अल्लाह की हकीकी तालीम पेश की जाए
اللہ کی قرب، اللہ کی عشق کی باتیں کی جائے، معرفت الہی کی باتیں کی جائے، اسے کہا جائے کہ اللہ کو اپناؤ، اللہ کو پانے کی کوشش کرو، اللہ کی دوستی کی اور قدم بڑھاؤ، دنیا سے بے نیاز ہو جاؤ۔ اگر معرفتوں الہی والی بات کی جائے تو عام انسان کی زبان سے اسی طرح کے الفاظ نکلتے ہیں کہ کیا بیوی بچے کو چھوڑ دوں، پریوار فیملی کو بھٹکتا ہوا چھوڑ دوں اور جنگل چلا جاؤں، یہی الفاظ نکلتے ہیں۔ اور میں جانتا تھا اپنے رب کے کرم سے، اپنے مرشد پاک کے کرم سے کہ آپ بھی یہی الفاظ دہرائیں گے میں بھی ہے۔ اب اللہ ظاہر میں ہے تو اس بات کو سمجھیں کہ اللہ ظاہر میں ہے تو وہ کس صورت میں، کس روپ میں، کس طرح سے وہ ظاہر میں ہے، اور اگر باطن میں وہ فرما رہا ہے تو وہ باطن میں کون سی صورت، کون سا روپ، کون سا طریقے سے وہ باطن میں ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہوا ظاہر ہوا الباطن کا مطلب ہے کہ اللہ ظاہر میں بھی ہے، اللہ باطن میں بھی ہے۔ مطلب کہ ظاہر میں اللہ ہے تو وہ تمہارے کرموں کے مطابق ہے، اچھے کرم کرتے جاؤ، تمہارے بیوی، تمہارے بچے، تمہارے فیملی، تمہارے کاروبار، یہ سب تمہارے کرموں میں آ جاتے ہیں، تمہارے کرم ہے جو نبھانا ہے ایمانداری سے، اس سے منہ نہ چراؤ، اس سے پیٹ دکھا کر جنگل جانے کے لیے اللہ نہیں کہہ رہا ہے کہ جنگل چلے جاؤ، تم اپنا کرم نبھاؤ، پھل کی چنتا مت کرو، بس اپنا کرم کرو۔ ہوا ظاہر کا مطلب ہے کہ اللہ تمہارے کرموں کے روپ میں ہے، تم اچھے کرم کرتے رہو۔ اور دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ صرف کرم تمہارے بیوی بچے، تمہارے پریوار تک ہی محدود نہیں ہے، تمہارے کرموں میں آ جاتے ہیں۔ ہوا ظاہر کا مطلب کہ تمہارے ظاہری کرم میں آ جاتے ہیں تو بیوی بچوں کے علاوہ، فیملی پریوار کے علاوہ، بزنس کے علاوہ اللہ کے دیگر مخلوق بھی آ جاتے ہیں۔ دیگر مخلوقوں کے اوپر بھی رحم کرو، کرم کرو۔ ایک چیٹی کو بھی دانے پروسو، ایک پنچھی کو بھی اپنے حصے سے نکال کر آگے رکھو، یہ کرم آ جاتے ہیں۔ راہ چلتے اگر ایک کنکر پتھر، ایک اینٹ بھی دکھ جائے کہ جس سے محسوس ہو کہ کسی کو تکلیف ہوگا، اس کنکر پتھر کو راستے سے ہٹاؤ، یہ تمہارے کرموں میں آ جاتے ہیں۔ اگر کہیں پہ دیگر پانی زیادہ بہ رہا ہے تو اس پانی کو روکنے کی کوشش کرو تاکہ دوسرے مخلوقوں تک وہ پانی پہنچ سکے اور کوئی پیاس اپنی بجھا سکے، یہ تمہارے کرموں میں آتا ہے۔ دان، صدقے، زکات، یہ سب کرتے رہو، یہ تمہارے کرموں میں آتا ہے۔ غریبوں کو کھلاؤ، پیاسے کو پلاؤ، یہ کرموں میں آتا ہے۔ ہوا ظاہر ہوا الباطن، ظاہر میں اللہ ہے، وہ ملے گا تو تمہارے اچھے کرموں کی صورت میں ملے گا۔ اور ہوا الباطن کا مطلب ہے کہ تم اپنے باطن پر بھی دھیان دو، تمہارے وجود